آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یسوع المسیح کی الوہیت پہ آج بات کریں کہ وہ کس طرح باپ کے ساتھ ایک ہے، باپ اور بیٹا کیسے ایک ہے۔ آج ہم اس موضوع پر، اس ٹائٹل پر، خدا کے اس کلام کے حصے کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو جاننے کے لیے پہلے ہم چلتے ہیں خداوند کے پرانے نامہ کی طرف، جو کہ پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت سے خداوند کا پاک کلام ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت کے متعلق کیا کہتا ہے۔ وہ ماسٹر آف گاڈ ہے، وہ گاڈ آف گاڈ ہے، وہ لیمب آف گاڈ ہے، سن آف گاڈ ہے، اور اس کی جو الوہیت ہے وہ کیسے ثابت ہے پرانے نامہ سے اور نئے نامہ سے۔ ہم آج اس بات کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خداوند سے دعا کریں گے، منت کریں گے کہ خداوند جو ہمارا خدا ہے آج کے اس زندہ کلام کو، زندہ خدا کو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں کو نرم کرے، سافٹ کرے اور سمجھنے کی ہمیں وہ توفیق دے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرانے نامہ میں کہاں پہ خدا نے یہ بات کہی ہے کہ وہ باپ اور بیٹا ایک ہے۔ تو میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ سنیں، وہ کھولیں پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت سے ہم خداوند کا پاک کلام سنیں گے فرات پرویز سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یہ ہم نے دیکھا کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے، زندہ خدا کا زندہ کلام، وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو کیسے ثابت کرتا ہے پرانے عہد نامہ میں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اب نئے عہد نامہ کی طرف کہ وہاں پہ کس کس کتاب میں یہ درج ہوا اور جو یسوع مسیح کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی وہ کیا ہے، وہ کس طرح لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کیسے الفا اور اومیگا ہے، وہ کیسے اس کی دائنی ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ اس نے کہا کہ آؤ ہم ایک کیا انسان کو اپنی شبیہ پہ، صورت پہ، اپنی شبیہ پر اس کو بنائے، اپنی شکل کے اوپر۔ یعنی خدا نے، کس نے کہا؟ باپ نے بیٹے سے کہا۔ ہم مسیحی جو ہیں، جو ہم اس ایمان کے اوپر ہیں، ہم اس ایمان پہ ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے، خدا سے جدا نہیں ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں کہاں پہ یہ درج ہے کہ ہم اس بات کو جان سکیں۔ تو ہم پڑھیں گے لوکا 22 باب اس کی 69 جو ورس ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ لوک چیپٹر 22 ورس 69 سے ہم دیکھیں گے 70 تک، اور پڑھیں گے میرے لیے اتنا میں بھی پڑھوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، بس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل میں خداوند نے یہ کہا کہ لیکن اب سے، لوکا اس کا جو باب 22 ہے، 69 اس کی ورس ہے اور 70 تک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا، جب تک یہ قیامت نہیں آتی، جب تک خدا آسمان سے اپنے جلال، پورے جلال کے ساتھ زمین پر نہیں اترتا اپنے لوگوں کے لیے، ہم سب اس کا استقبال نہیں کرتے، تب تک کیا ہوگا؟ وہ وہیں کس طرف؟ دائیں طرف، رائٹ سائڈ پہ
वो बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? इस पर वो सब तज्जुब किया, उन्होंने हैरान हुए। उन्होंने कहा, इस पर उन सब ने कहा, एक यकजान होकर कहा, यक आवाज होकर कहा कि बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं? तुम खुद कह रहे हो कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो तुम खुद कह रहे हो, इसीलिए मैं हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। आइए हम आगे देखते हैं, यूहन्ना जॉन चैप्टर 10 वर्स 37। क्या अक्षर हमारे लिए पढ़ेंगी? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10 बाब, उसकी 30 आयत। जी, मैं और बाप एक हैं। आमीन। एक बार फिर पढ़े ऊंची आवाज से। यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 आयत। 30 आयत। थैंक यू, शुक्रिया, बैठिए। यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 आयत से लिखा है कि मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। जब उसने ये कहा कि मैं और बाप एक हैं, तो यहूदियों ने क्या किया? एकदम पत्थर उठाए उसको संसार करने के लिए। तो क्या लिखा आगे कलाम में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। मुझे क्यों संसार करते हो? मैंने उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? बाप की तरफ से, खुदा की तरफ से बतेरे अच्छे काम किए हैं। तो इस बात को हमें जानने की जरूरत है। बाइबल का एक लफ्ज गॉड हमें ये साबित करता है कि उसकी जो उलूहियत है, वो जो खुदा है, वो एक है। बाप और बेटा एक है। एक ही दलील हमें काफी है, लेकिन हमारे पास बेशुमार पूरे बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में हमें बेशुमार ऐसी आयात मिलती है, ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं जिनसे ये साबित, हमें ना खुदा के कलाम पे कोई शक है, ना हम शक कर सकते हैं। और ये बिलीवर्स, ये ईमानदारों के लिए कलाम है जो खुदा ने हमें दिया है। किनके लिए है? ईमानदारों के लिए। अभी हम एक और आयत को देखेंगे, एक और खुदा के इस एक किताब को देखेंगे, इंजील मुकद्दस को देखेंगे, जो कि मत्ती 16 बाब और उसकी 16 आयत है। जी, मैरी पढ़ेगी हमारे लिए 16 बाब उसकी 16 आयत से। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या कहा? उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। हालेलुया, बैठिए। अब देखेंगे उसने, किसने? यीशु ने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने, किसने? शमौन, जो उनका एक शागिर्द था, जो उनके साथ चलता था। उसने कहा, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बकरार कर रहे हैं, सब बकरार कर रहे हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा। ये कलाम जिंदा है। शक्लें, चीजें आती रही और जाती रही, लेकिन खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें हौसला बख्शता है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसने कहा कि तू, शमौन पतरस ने क्या कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक है तू।
क्या कहा? मुबारक है तू शमौन बर यूहन्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। किन्होंने कहा? खुदा यस्सु ने जवाब में उनसे कहा। किनको कहा? शमौन को, ठीक है, और यूहन्ना को, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं की बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं। सिर्फ नुक्ते को समझने की जरूरत है। ये मैंने तुमको नहीं कही, नहीं की, ये खुदा ने तुम पर ज़ाहिर की है। तो हम इस बात को अगर हम करना चाहें तो ये पूरी इंजील मुकद्दस, पूरी बाइबल मुकद्दस, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है हमें यीशु मसीह की अलोहियत जो है उस पे हमें बेशुमार ऐसी चीजें देता है कि हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है, लैम्ब ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। तो हमें इन चीजों को समझने की, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तदा और इंतहा है। तो हमें आज इस बात को अपने ज़हनों में रखना चाहिए कि जो लोग जो बातें करते हैं, मुख्तलिफ नजरियात के लोग, चूंकि मसीहत पर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं अज़ल से ही, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें ये समझना है और ये जानना है कि हमें यीशु मसीह की अलोहियत को जानना है। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। तो दोस्त मेहरबान बाप खुदावंद तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए, सारी बरकत के लिए जो तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे कदमों में आए, तुझे धन्यवाद जान सकें, तेरी अलोहियत से वाकफियत हासिल कर सकें, जान सके कि तू बाप के साथ कैसा है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, और जो कुछ हमने सुना और जाना खुदावंद तो उसको समझने की हमें तौफीक दे, हमें ताकत दे, हमें बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि हाज़िर जमात के साथ हो, हमने जो कुछ सीखा और जो समझा, ऐ खुदावंद उस पर अमल करने वाले ठहरे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की शराकत और रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कसीम के साथ अब तक होती रहे। आमीन।